today we will do practice set 2.3 maths 1 of standard 9. State the order of surds given below. Just we have to find the order here. This is cube root of 7. तो order क्या होगा इसका 3. Order क्या होगा 3. Okay. Order is 3. यहाँ पे 5 रूट 12 है. 5 रूट 12. तो इसका ऑर्डर क्या हो गया रूट 12 है ना. तो रूट मीन्स स्क्वायर रूट. रूट मीन्स स्क्वायर रूट. द ऑर्डर इज व्हाट 2. ऑर्डर इज 2. ऑर्डर इज 2. यहाँ पे 4th रूट ऑफ 10. नाउ ऑर्डर इज व्हाट. ऑर्डर इज 4. अगेन यहाँ स्क्वायर रूट है तो ऑर्डर इज 2. यहाँ क्यूब रूट है. ऑर्डर ऑफ सर्ड इज order of surd is 3. Okay. स्क्वायर रूट है तो 2, क्यूब रूट है तो 3, 4th रूट है तो 4. Now the next one is state which of the following are surds. Which of the following are surds. Okay. सबसे पहले सर्ड्स कौन सा है जिसका रेडिकेंट पॉजिटिव रैशनल नंबर है and the order is greater than 1. Order is greater than 1. Then that is a surd. The first one is a surd because 51 is a positive rational number. This radicand 51 is a positive rational number. It is a surd as radicand is radicand 51. Radicand 51 is positive rational number. Positive rational number and order is 3. Order is 3. Order is greater than 1. Okay, it's 3. Therefore, it is surd. Now we will move to the next one. Here 16 is also a positive rational number. It is a surd as radicand 16 is a positive rational number and order is greater than 1, that is 4. Order is 4. Okay. Now we'll move to the next sum. Even this is a surd. And why it is a surd? This is not a surd. This is not a surd. Why this is not a surd? Because it is not positive rational number. Why it is not positive rational number? Why this is not positive rational number? Just I will show you. Root 16 अगर इसको 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16. ठीक है, इसको निकालेंगे रूट में से 4th रूट में से तो 2 आंसर आएगा. तो ये रैशनल नंबर नहीं है. जो रूट में से निकल गया वो रैशनल नंबर नहीं है. That's why it's not a surd. It is not a surd as radicand 16 is not a positive rational number and order is 4. Okay, order is okay, but it is not a positive rational number. Okay, now let's see the third one. In the third one, let's check it out whether it's a surd or not.
ये रूट में से निकलेगा क्या? 3 3 जा, नहीं नहीं, 3/4 आता है तो नहीं निकलेगा। ओके, तो इट इज अ सर्ड, इट इज अ सर्ड, it is third. Why it is third? As radicand is 81 positive rational number, positive rational number, and order is 5, and order is greater than 1. okay, it's 5. तो देखो 81 नहीं निकलता है। अगर यहाँ फोर्थ रूट ऑफ 81 होता तो निकल जाता। क्यों निकल जाता? क्योंकि 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आता है, समझा? तो फिर वो सर्ड नहीं रहता अगर फोर्थ रूट होता तो, लेकिन यहाँ फिफ्थ रूट है, इसके लिए ये सर्ड है। ओके, नाउ यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ 256, ये 256 किसका स्क्वायर रूट है तुम्हारे को मालूम है? If you don't know, I will do it for you. This is 16 का square root. It is a square root of 16. तो स्क्वायर रूट, स्क्वायर हटा, रूट निकला, ये आ गया 16. ओके, तो मैं बोलूंगा this is, it is not a surd, it is not a surd as radicand is not a positive rational number, positive rational number. ओके, और फिर वो तो ऑर्डर का तो जरूरत ही नहीं है। यहां पे देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ओके, तो इसको अगर मैं, ये क्यूब रूट है तो 4 का क्यूब करूंगा तो 4 निकलता है बाहर। क्या निकलता है? 4। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको क्यूब रूट ऑफ 4 का 4 निकला, मीन्स व्हाट आई विल से इज द क्यूब रूट ऑफ 64। ठीक है, इट इज नॉट अ सर्ड, इट इज नॉट अ सर्ड, रूट में से निकल रहा है, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर as radicand is what? As radicand is not a positive rational number, not a positive rational number. ओके, समझा? अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर होता तो रूट में से नहीं निकलता। ओके, चलो, नाउ द थर्ड वन, क्लासिफाई द गिवन pairs of surd as like and unlike surds. चलो, द फर्स्ट वन इज हियर, लाइक और अनलाइक सर्ड्स करना है। ठीक है, कौन सा लाइक सर्ड है, कौन सा अनलाइक सर्ड है, चलो देखते हैं। रूट 52 क्या होता है? 52 4 13 जा 4, 2 रूट 13 आ गया, 2 रूट 13, ये एक हो गया। दूसरा इज गिवन ना, दूसरा तो दिया हुआ है, ये 2 रूट 13 हो गया। यहां पे भी रूट 13 है, 5 रूट 13 एंड 2 रूट 13, रूट 13 आ रहा है, therefore it's a like surd, therefore 2 रूट 13 and 5 root 13 are like surds. Okay, चलो, now the next one, रूट 68। अभी यहाँ रूट 3 है, यहाँ पे क्या है? रूट 3। तो 3 का टेबल में देखो आता है कि ये कौन सा 3 का टेबल में जाएगा क्या? नो, इट डजेंट। अगर ये आएगा तो ये 4 17 जा 68 आता है, 4 17 जा 68। तो इसका आ गया मेरे पास 2, 4 का 2 बाहर निकलेगा, रूट 17, 2 4
2√17। ओके, तो यहाँ पे 17 रूट है, यहाँ पे √3 है, तो ये मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, 2√17 and 5√3 are unlike surd. It is not a like surd, means unlike surd, are unlike surds। ठीक है, ओके चलो अब ये नेक्स्ट वन 4√18 को देखो। अभी 2 चाहिए मुझे, ठीक है, तो 2 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये 9 2 ज़ा 18 होता है, ठीक है, तो ये 9 का 3 बाहर निकल सकता है, स्क्वायर रूट, या मल्टीप्लाई हो गया 3, ये √2 हो गया। 4 3 ज़ा 12 होता है, 12√2 आ गया। तो मेरा पहले वाला 12√2 आया, दूसरा क्या था 7√2, तो √2 है, तो फिर ये लाइक सर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12√2 and 7√2 are like surds, are like surds, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4√18 ये भी लाइक सर्ड्स है, बिकॉज उसका बाइफर ये सिंप्लीफाई करने के बाद लाइक सेट हो जाते हैं वो, ठीक है। तो फाइनल आंसर यू शुड राइट लाइक दिस, एंड 7√2 आर लाइक सर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे भी फाइनल आंसर लिखना है तुम्हारे को, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ दोनों का करना पड़ेगा, ठीक है। इसका अगर मैं करता हूं तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। आई कांट, कुछ भी नहीं निकलेगा बाहर। कुछ निकलेगा बाहर? आई डोंट थिंक कि कुछ निकले बाहर, तो ये वैसे ही रहेगा, है ना। तो इसको दोनों में से कुछ भी नहीं निकलता बाहर, तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा 5√22 एंड 7√33 आर अनलाइक सर्ड्स, अनलाइक सर्ड्स। ओके चलो हो गया। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई, हाउ टू सिंप्लीफाई दिस, तुम्हारे को टेबल मालूम है, 9 3 ज़ा 27। अब 9 रूट में से निकलेगा तो 3 बच जाएगा बाहर, और ये √3 हो जाएगा, 3√3। ओके, अब यहाँ 50 है, तो 50 कैसा होता है, 25 2 ज़ा 50, 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5, तो 5 निकला और √2 अंदर, 5 निकला और √2 अंदर, ठीक है। नाउ लेट्स सी द अदर वन। $250 है, क्या है 250, तो कैसे करेंगे, 25 इंटू 10, 25 इंटू, तो 25 का 5 निकला, ये √10, ठीक है। आगे कुछ करने का जरूरत नहीं, ओके। अब 112 है, तो देखने का किससे होता है, 16 का टेबल में जाता है क्या, 16 7 ज़ा 112, तो 16 का 4 बाहर निकला, ये √7। 168 कैसा मिलेगा, 442 ज़ा 442 ज़ा, तो ये आ गया 2 और ये आ गया 42। ओके, 4 का स्क्वायर रूट निकल गया, इसका नहीं निकलता है, वैसे ही रख देना है। ये सिंप्लीफाई हो गया। अभी अपन कंपेयर करेंगे सर्ट्स को। व्हाट वी विल डू, वी विल कंपेयर द सर्ट्स, ओके, विच इज बिग एंड विच इज स्मॉल। तो हाउ टू कंपेयर करने के लिए ये जो मिक्स सर्ड है ना, इसको प्योर सर्ड बनाना है। क्या बनाना है, प्योर सर्ड। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ 7√2 था, तो √2 तो अंदर है ही, अगर इसको अंदर लेना है तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 7 को अंदर ले लिया, स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो क्या हो जाएगा, ये दिस विल बिकम 2 7 7 ज़ा 49, ठीक है। अब 49 2 ज़ा कितना होता है 98, तो √98 आ गया ये। 5√3, अब ये देखो √3 तो अंदर था ही, 5 को स्क्वायर करके अंदर लिया, मल्टीप्लाई किया, है ना। रूट के अंदर लेना है तो स्क्वायर करना है, बाहर था वो, इसके लिए 3 5 5 ज़ा 25, ये होता है 75।
अब दोनों रूट के अंदर है, ठीक है। अब बताओ कौन सा बड़ा, दिस इज बिगर देन दिस, ओके। दैट मीन्स व्हाट, 7√2 is bigger than 5√3, okay. Now the next one, directly I can say which is bigger and which is smaller here. 2√7 is smaller than 274, okay. ये दोनों रूट में है, प्योर सर्ड है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन वी कैन डू। अब यहाँ पे कंपेयर करने के लिए ये तो है, इसको करना पड़ेगा, 2√7 को करना पड़ेगा। तो हाउ टू मेक प्योर सर्ड, 2 अंदर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7, 2 2 ज़ा 4, 7 4 ज़ा 28, दिस इज ऑल्सो 28 एंड दिस इज ऑल्सो 28, इसको मिक्स प्योर सर्ड बनाया तो दैट मीन्स व्हाट, √28 is equal to √28, therefore 2√7 is equal to √28, okay, they are equal surds है वो। अब यहाँ पे देखो दोनों का करना पड़ेगा, 5√5, ओके चलो, तो √5 तो अंदर था ही, ये 5 अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका स्क्वायर, तो ये जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 25, 525 125, 525 125। अब ये देखो 7√2 है, ठीक है, तो ये √2 पहले ही था, 7 अंदर आ गया, स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, तो ये 2 वैसे ही रहेगा। अब ये अंदर आके स्क्वायर हो गया, क्यों, अंदर लेंगे तो स्क्वायर करना पड़ता है, ये रूल है उसका, ठीक है। अब 7 7 जा क्या होता है 49, 7 7 जा 49, क्या हो जाएगा ये 98। अब बताओ कौन सा बड़ा है इसमें से, नाउ आई कैन इजीली मेक इट आउट बिकॉज बोथ आर इन रूट, ये बड़ा है इससे, ठीक है, ओके। दैट मीन्स ये फर्स्ट वाला इज ग्रेटर देन दिस सेकेंड वाला, ओके। नाउ सिंप्लीफाई, प्लस करना है, तो कैसे प्लस कर सकते हैं, फर्स्ट यू हैव टू सी वेदर देयर इज अ कॉमन रूट, हाँ कॉमन रूट है, तो ओके अपन क्या करेंगे 5 + 8 ब्रैकेट में लेके रूट बाहर निकालेंगे, ठीक है, प्लस था तो रूट बाहर निकाल दिया, 5 + 8 हो गया, √3 दोनों में से बाहर निकाल दिया, 5 + 8 हो गया, 5 + 8 इज व्हाट, इट्स 13, तो 13√3 आंसर आ गया मेरा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सम इज माइनस एज वेल एज प्लस, ओके। नाउ द सेकेंड सम इज, तो मैं क्या करूंगा, इसमें √125 है तो √5 बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है, तो 2√5 - 4√5 प्लस इसको लिखेंगे 25 5 जा, ओके चलो ये सेम लिख दिया। अब 25 का 5 बाहर निकला, ये √5 अंदर रह गया, 25 का 5 बाहर निकला, √5 अंदर रह गया, ओके चलो। अब सबका √5 है, कॉमन निकाल दो, √5 कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, व्हाट वी विल राइट इन द ब्रैकेट नाउ, कम ऑन, व्हाट वी विल राइट इन द ब्रैकेट, यहाँ पे 2 - 4 + 5, ठीक है, 2 - 4 + 5। अब मैं क्या करता हूं, पहले प्लस वाले लिख देता हूं, फिर माइनस करेंगे, ओके। आइदर वे यू कैन डू इट कि 2 में से 4 गया तो -2, देन वी कैन सबट्रैक्ट इट फ्रॉम दिस 5, तो 3 आने वाला है, ऐसे भी आएगा और वैसे भी आएगा, यहाँ 7 - 4 इज 3, ओके। तो मैं पहले पॉजिटिव नंबर्स लिखूंगा, फिर -4, ओके। तो ये क्या आएगा बोलो, चलो क्या आएगा, ये हो गया 7 - 4 √5, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, इट्स 3√5, ओके। तो ये फाइनल आंसर है तुम्हारा। नाउ द नेक्स्ट वन, 7 48 क्या होता है, 16 3 ज़ा 48 होता है, 16 3 ज़ा, और ये 9 3 ज़ा होता है, ठीक है, -√3, तो 7 ये 16 है तो 16 का क्या करेंगे, 4 बाहर निकाल देंगे, ये 3 अंदर ही रहेगा, इसका 9 है तो 9 का 3 बाहर निकला, ये √3 अंदर ही रहा, -3, ओके।
7 4 जा 28, 28 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 माइनस रूट 3। यहाँ कुछ नहीं यानी 1, कुछ नहीं यानी 1 है ना। दिस पेन मीन्स 1 पेन, वैसे रूट 3 मीन्स 1 रूट 3। ओके, 1 तुम्हारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 1 लिख दिया हूं यहाँ पे मैंने। अब रूट 3 कॉमन निकाला मैंने, रूट 3 कॉमन निकाला, ठीक है। अब 28 माइनस 3 माइनस 1, 28 में से माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा 24, 24 रूट 3। क्या आया आंसर 24 रूट 3। ओके, नाउ दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ द फोर्थ सम इज रूट 7, यहाँ पे भी रूट 7 है, यहाँ पे भी रूट 7 है, यहाँ पे भी रूट 7 है, तो नथिंग टू वरी। यहाँ पे 1 रूट 7 लिख दो और रूट 7 कॉमन निकाल दो, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 3 अपॉन 5। ओके, 1 प्लस 2 माइनस 3 अपॉन 5 ये हो जाएगा। आगे यहाँ ही कंटिन्यू कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस हियर, तो 3 माइनस 3 अपॉन 5 रूट 7। अगेन आई विल कंटिन्यू हियर, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो आई हैव टू ब्रिंग 5 हियर ताकि मैं माइनस कर सकूं। तो 5 लाने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे कुछ नहीं यानी 1, नीचे ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया इसको, नीचे कुछ नहीं यानी 1, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 3 अपॉन 5 ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये रूट 7। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे अगेन, 3 5 जा 15, यहाँ पे 5 आ गया माइनस 3 अपॉन 5। ओके, ये रूट 7 मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक ही बार लिख देंगे डिनोमिनेटर 5, 15 माइनस 3 रूट 7। ये आ जाएगा क्या, माइनस करो भाई, 12 अपॉन 5 रूट 7। दिस इज अ फाइनल आंसर, 12 अपॉन 5 रूट 7। ठीक है, फाइनल आंसर यही मिल गया, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं वापस। मल्टीप्लाई एंड आंसर द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको आंसर करना है, मल्टीप्लाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना है। ओके, लेट्स डू। ये 3 है, क्या है ये 3। ओके, अब इसको क्या करेंगे, 4 3 जा 12। ओके, 4 3 जा 12। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। तो अब ये क्या आ जाएगा 3। अब इसका 2 बाहर निकला, 4 का 2 बाहर निकल गया, ये रूट 3 रह गया। मल्टीप्लाई बाय ये 3 बाहर निकला, इसका 9 का, ये रूट 2 रह गया। अब मेरे पास क्या आ गया 6 रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट 2। ठीक है, तो अब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, रूट को रूट से। 6 3 जा 18, रूट को रूट से करो। अच्छा, मैं करके दिखाता हूं तुम्हारे को, नंबर को नंबर से करना है और रूट को रूट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ताकि तुम्हारे को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये हो जाएगा 18 और ये जाएगा रूट 6। ओके, चलो, नाउ द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज 3 12 का क्या आएगा, 4 3 जा 7। 15 का कुछ आता है क्या, 15 का आई डोंट थिंक एनीथिंग विल कम आउट, है ना, लगता है कुछ। अगर करना है तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होगा अपने से इसका। 3 रूट 3 5 जा 15 होता है, ठीक है। चलो कर लेते हैं। अब ये 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 बाहर निकला 2 हो गया, रूट में से निकला 2 हो गया, ये रूट 3 वैसी, ये 7। अब यहाँ पे देखो रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 बोलूँगा, हाँ, इसको अलग कर दिया मैंने, ठीक है। क्यों अलग किया बाद में देखते हैं। ये कितना हो गया 6 रूट 3, 6 रूट 7 रूट 3 इंटू रूट 5। ओके, अब इसको क्या करेंगे, पहले नंबर को ले लेंगे एक जगह पे, 6 इंटू 7, फिर बाद में रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 5। ओके,
तो यहाँ पे 6 7 जा कितना होता है, देखो अपन ने क्या किया, नंबर्स को एक जगह पे ले लिए, ठीक है। तो 6 7 जा इज 120, एक मिनट, एक काम करते हैं, 6 7 जा बाद में करेंगे, इसको भी √3 इंटू √3 इज 3, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई बाय √5। ओके, तो अब ये क्या करूंगा, 7 3 जा 21 √5। अभी देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब ये इजी हो गया, ठीक है। अब वो डिफिकल्ट होता था मल्टीप्लाई करने के लिए, इसके लिए मैंने क्या किया, 6 7 जा नहीं लिया, 7 3 जा 21, 6 21 जा 126 √5। ओके, नाउ वी विल डिवाइड। हाउ टू डिवाइड, डिवाइड करने के लिए 98 अपॉन √2, ठीक है, ये ऐसे सेम है, होल रूट कर दिया इसको। तो 2 1 जा 2, आधा करो उसका, 49 जा, है ना, 2 का टेबल में हाफ करने का, तो ये हो गया √49 मतलब 7। आंसर क्या आ गया, 7। अब दूसरा वाला देखो, इन द सिमिलर वे 125 और ये 50 है, अब 25 से कट सकता है ये, ठीक है। देखो किससे कैसे काटेंगे इसको। व्हाट आई विल डू इज 25 का टेबल इसको ऐसा लिख देते हैं, चलो 25 5 जा और ये 25 2 जा, ठीक है। तो ये 25 कट गया, तो मेरे को क्या मिला, 5 अपॉन √2, ये आंसर है, ठीक है। ओके, नाउ द थर्ड वन। थर्ड वन क्या है, 54 और ये 27। अब मेरे को कोई बताएगा कि 27 का डबल क्या होता है। इट्स नथिंग बट 27 1 जा 27, 2 जा 54 ही होता है। तो ये आंसर आ गया मेरा √2, ठीक है। अब इसको करेंगे 310 अपॉन 5, 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करेंगे। तो अब 5 से डिवाइड करने के लिए मैं पहले इसको ये करता हूं कि भाई 5 कितने जा होता है, 562 जा होता है, 560 जा क्या होता है, 300 होता है। तो 562 जा 310। ओके, तो ये 5 5 कैंसिल, बचा क्या, √62, √62। ओके, चलो नेक्स्ट वन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। जो √5 है वो नहीं चाहिए मुझे, वो नहीं चाहिए। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √5 अपॉन, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ओके, आई हैव टू राइट इट हियर, मल्टीप्लाइंग the numerator and the denominator by √5, ठीक है। √5 से मल्टीप्लाई किया, देखो ऊपर नीचे, मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √5, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, 3 √5 ऊपर हो जाएगा, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करके इट विल बिकम 5, इट विल बिकम। तो आंसर क्या आ गया मेरा, द फाइनल आंसर इज 3/5 √5। ओके, अब यहां पे देखो √7 है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे। What I will do, multiplying the numerator and denominator by √7, रूट ऊपर भी नीचे भी, तो ऊपर बन जाएगा 5 √7 और √7 इंटू √7 इज 7। ये आंसर आ गया फाइनल। ओके, अब लेकिन यहां पे कुछ और प्रॉब्लम है। 6 9 √3, 6 9 √3। तो यहाँ पे ये देख के ऐसा टेंशन में नहीं आने का कि यहाँ √3 के साथ में 9 है। अब यहाँ मेरे को रूट नहीं चाहिए, मेरे को 9 से प्रॉब्लम नहीं है,
Okay, so what I will do, again I will multiply this by न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3 हटाना है, ठीक है। चलो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 6√3 अपॉन 9 इंटू 3, 9 इंटू 3। चलो अब इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 2 जा, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 2 अपॉन 9 √3। This is the final answer. Okay, I think it's enough for the day. Thank you. Have a nice day.